پاس ہے۔ افسران کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، جس کے بعد کام کرواتا تھا۔ ماضی میں اس نے جھوٹ بول کر الیکشن لڑا۔ وسیم اختر کسی صورت پر کام کرنے کو راضی نہیں۔ وہ فوٹو سیشن اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ عوام کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے تاکہ ریاست ان کی خدمت کر سکے۔ میئر کراچی کی پرفارمنس دیکھیں تو انہوں نے کراچی کی خدمت نہیں کی۔ بارشوں میں ہمارے وزیر اعلیٰ سڑکوں پر تھے۔ مشیر قانون سندھ مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو۔ کراچی ہر سطح پر کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ الزام تراشی کر کے پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ تمام وسائل رکھنے والے وزیر اعلیٰ سندھ سے استعفیٰ کیوں نہیں مانگا جا رہا؟ الزام تراشی کی سیاست سے کچرا نہیں اٹھے گا۔ کراچی کو توڑنے کے فیصلے عدالتوں سے آ رہے ہیں، لیکن کراچی کی ترقی کے فیصلے نہیں آ رہے۔ فیصل سبزواری اور خواجہ اظہار الحسن کی پریس کانفرنس۔ وزیر اطلاع سعید غنی کہتے ہیں وفاق اور میئر ملے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ میئر لوگوں کو سول نافرمانی پر اکسا رہے ہیں۔ علی زیدی کی کلین کراچی مہم ٹویٹر پر جاری ہے۔ ہم نے وفاق سے 100% بہتر کراچی کے لیے کام کیا۔ K4 منصوبہ ہم نے تیار کیا۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا جناح اسپتال اور NICVD کے دورے۔ صفائی ستھرائی اور اسپتالوں کی صورتحال کا جائزہ۔ کہتے ہیں سندھ حکومت اسپتالوں کی صورتحال پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ میٹرو ون نیوز کی خبر پر سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا نوٹس۔ اسپتالوں کے باہر جمع سیوریج کے پانی پر برہمی کا اظہار۔ MD واٹر بورڈ اسد اللہ نے پانی جمع ہونے کے حوالے سے نکاسی عمل کا کام بھی کروایا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں حکومتی اور انتظامی نااہلی کے باعث کچرے کے ڈھیروں اور سیوریج کے باعث تعفن اور بڑھتی ہوئی بیماریوں کے خلاف نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن، کورنگی، سوجر بازار، PIB کالونی، گارڈن، قصبہ کالونی، علی گڑھ، اورنگی ٹاؤن، ملیر، سعود آباد اور دیگر علاقوں میں احتجاجی مظاہرے۔ لیٹس گرین کراچی مہم کے تحت ضلع کورنگی کے مختلف علاقوں میں بحریہ ٹاؤن کے تعاون سے صفائی مہم جاری۔ بحریہ ٹاؤن کے کمانڈر ریٹائرڈ ذوالفقار شاہ کا چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور کہتے ہیں محرم الحرام کے موقع پر امام بارگاہوں، مجالس اور جلوس کے روٹس کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ، گاڑیوں کی پارکنگ اور دیگر اہم اقدامات کیے جائیں گے۔ چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں بارش کے بعد صورتحال تھی اسے بغیر روئے دھوئے جتنا بھی کام کیا اپنے وسائل سے کیا۔ جو بہتری نظر آ رہی ہے وہ خلوص نیت کی بدولت ہے۔ ہماری جماعت سے منتخب ہر نمائندہ مشترکہ طور پر لاہ عمل تیار کر کے علاقے کے مسائل کو حل کراتا ہے۔ بلدیہ کورنگی کی UC 27 کے چیئرمین سید شوکت علی نے صفائی ستھرائی نہ ہونے پر واٹر بورڈ، DMC، KMC اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی لاپرواہی کا پول کھول دیا۔ کہتے ہیں عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوئی محکمہ تعاون نہیں کر رہا۔ کراچی کے علاقے لائنز ایریا کی مین شاہراہ پر پانی کی مین لائن پھٹ گئی، ہزاروں گیلن پانی ضائع ہونے لگا، چاروں اطراف پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ کراچی کے علاقے ملیر 15 نمبر پر سیوریج کے پانی نے زندگی اچیرن کر دی۔ سڑک پر سیوریج کا پانی جمع ہونے کے باعث بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے، ٹریفک جام معمول بن گیا۔ کراچی کا علاقہ سوجر بازار مسائلستان بن گیا، جگہ جگہ سیوریج کا پانی اور سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث علاقہ موہنجو دڑو کا منظر پیش کرنے لگا۔
शहरी बल्दियाती इदारों और सिंध हुकूमत की लड़ाई में रुल गए कराची के इलाके शरीफाबाद, हुसैनाबाद और फेडरल बी एरिया में कचरे के ढेर और सीवरेज के पानी से ताफुन उठने लगा। यूसी चेयरमैन ने वाटर बोर्ड के खिलाफ भरपूर एहतजाज करने की अपील कर दी। कराची के इलाके गुरुमंदा, बनौरिया, टाउन के अकब की गलियों में सीवरेज का बुरा हाल है। माह से सीवरेज के पानी की निकासी का अमल न हो सका। कराची के इलाके मलीर में डाकखाना वाली गली में सीवरेज के गंदे पानी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। सीवरेज की लाइन से चौक होने की वजह से पानी घरों में दाखिल, मकीनों का घरों में रहना ही मुहाल। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का पानी, कचरे के अंबार, अवाम परेशान। देखिए इसी बुलेटिन में सिर्फ कराची हमारी नजर से में। खबरों की डिटेल्स भी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल की जानिब से आर्मी चीफ से कराची में मुदाखलत की अपील कर दी गई है। मेयर कराची वसीम अख्तर का नाम ECL में डालने का उन्होंने मुतालिबा भी कर दिया है। कहते हैं वसीम अख्तर ने बहुत सी प्रॉपर्टी न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून ममालिक में भी बनाई है, उनसे भी एहतसाब लेना चाहिए। बहुत से पैसे निकलेंगे, जरा सी बारिश से बहुत से लोग मर जाते हैं। सारी जिम्मेदारी शहरी हुकूमत और मेयर कराची पर आयद होती है। मुस्तफा कमाल की जानिब से अपनी तोपों का रुख मेयर कराची की जानिब कर लिया गया है और उन्होंने मेयर कराची वसीम अख्तर का नाम ECL में डालने का बाज़ाब्ता मुतालिबा कर दिया है। साथ साथ आर्मी चीफ से भी कराची में मुदाखलत की बाज़ाब्ता अपील की है। कहते हैं वसीम अख्तर ने बहुत सी प्रॉपर्टी मुल्क और बैरून ममालिक में बना ली है, उनसे हिसाब लिया जाए। बहुत से पैसे निकलेंगे, जरा सी बारिश से बहुत से लोग मर जाते हैं। सारी समझदारी शहरी हुकूमत और खासकर मेयर कराची पर आयद होती है। मेयर कराची वसीम अख्तर एक बार फिर निशाने पर आ गए। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PSP के सरबराह सैयद मुस्तफा कमाल ने कहा कि कराची की तबाही के जिम्मेदार मेयर कराची वसीम अख्तर हैं। मेयर का नाम ECL में डाला जाए। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ कराची आएं और सबको बिठाकर बात करें। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल ने कराची की सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। PSP के मरकज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कराची को कोई बचाने वाला नहीं, सब एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। अब आर्मी चीफ के अलावा किसी से कोई तवक्को नहीं। पाक से ज़मीन पार्टी ये मुतालबा करती है कि वसीम अख्तर का नाम, मेयर कराची का नाम ECL में डाला जाए। ये जो कराची की तबाही बर्बादी है, इसका हिसाब इसको उल्टा टांग कर ऐसे लिया जाए। बहुत पैसे निकलेंगे, हर हाल में इसका नाम, इसको फरार होने का रास्ता नहीं मिलना चाहिए। ये बीइंग अ मेयर ये जाएगा और ये वापस नहीं आएगा। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो है वो पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में बना ली गई हैं, जिसके ऊपर ये प्लान, और ये आखिरी दफा के तौर पर ये काम ये कर रहे हैं। उनको पता है इसके बाद नहीं आना, तो पाकिस्तानियों का पैसा है, ये पाकिस्तान की ये तमाम चीजें हैं, इसको फरार होने का रास्ता नहीं देना चाहिए। बाद में केसेस बनाना, लेकिन इसका नाम अभी ECL में जरूर डालो। ये हमारी रिक्वेस्ट है। मैं वज़ीर आज़म से अब रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नए मुंतखब होने वाले, नए से मुराद जिनको एक्सटेंशन मिली है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा जिस तरह से आप सरहदों का दौरा करते हैं, इस तरह से कराची का एक दौरा कर लीजिए। ये समझ के कि इसकी भी अहमियत है, ये समझ के कि आपकी सरहदें कराची की इंडस्ट्रीज और कराची के मजदूर के जिंदा रहने की वजह से सरहदें महफूज हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा कि कचरा नालों से निकालना विफाक का काम नहीं, सफाई मुहिम से शहर में वबाई इमराज फूट रहे हैं, जबकि वसीम अख्तर अब भी पैसा बनाने के चक्कर में हैं। सफाई मुहिम के नाम से जो कैंपेन चल रही है, हमने नेक तमन्नाओं का इजहार किया, सपोर्ट की सारी चीजें। एक तो डेफिनेटली वफाकी हुकूमत का काम नहीं है आकर सफाई करना, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस धुन में ये वाला काम ले लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो नाले से चीजों को निकालकर, गंद बला निकालकर पार्कों में डाल रहे हैं, सड़कों पर डाल रहे हैं। और ये पूछा जा रहा है कि हम ये कचरा कहां डालें, लैंडफिल साइट पे जाने की इजाजत मांगी जा रही। ओ बाबा, कचरा उठेगा तो लैंडफिल साइट पे ही जाएगा।
اس پہ یہ وہ کوئی سیکیورٹی زون ہے، لینڈ فل سائٹ کو سیکیورٹی زون ہے کہ وہاں پہ جانے کی کوئی پرمیشن چاہیے؟ بھئی کچرا ہمیشہ سے اٹھتا تھا تو لینڈ فل سائٹ پہ جاتا تھا. اگر لینڈ فل سائٹ پہ کچرا نہیں جا رہا تو پھر کراچی سے آپ ہزاروں ٹرک بھی اٹھائیں، اس کا مطلب ہے آپ صفائی نہیں کر رہے، بلکہ آپ گند کسی ایک جگہ سے شہر کے کونے سے اٹھا کر دوسرے کونے میں اس گند کو پھیلا رہے ہیں. دوران پریس کانفرنس مصطفیٰ کمال نے میئر کراچی کے خلاف سخت جملوں کا استعمال کیا اور کہا کہ جب تک میئر سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو جاتا کراچی کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی. جبکہ دوسری جانب مصطفیٰ کمال کے الزامات پر وسیم اختر کی جانب سے بھی جوابی وار کر دیا گیا. کہتے ہیں مصطفیٰ کمال درجہ چہارم کا لیب اسسٹنٹ تھا اور فائل اپنے ساتھ لے گیا تھا. مصطفیٰ کمال نہیں جانتا کہ ماسٹر فائل میرے پاس موجود ہے. افسران کو ڈرا دھمکا کر کام کروایا جاتا تھا. ماضی میں اس نے جھوٹ بول کر الیکشن بھی لڑا ہے. اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال کے الزامات پر وسیم اختر کی جانب سے بھی جوابی وار کیا. کہتے ہیں مصطفیٰ کمال درجہ چہارم کا لیب اسسٹنٹ تھا اور فائل اپنے ہمراہ لے گیا تھا. مصطفیٰ کمال نہیں جانتا کہ ماسٹر فائل میرے پاس موجود ہے. افسران کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا اور اس کے بعد ان سے کام لیا جاتا تھا. ماضی میں اس نے جھوٹ بولا اور الیکشن لڑا. مصطفیٰ کمال اور وسیم اختر کی مخالفانہ باتیں، ایک کے بعد ایک جوابی وار. میئر کراچی وسیم اختر نے دیا اینٹ کا جواب پتھر سے. فیررحال کے مقامی آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میئر کراچی وسیم اختر نے پی ایس پی کے سربراہ پر زبانی نشتر چلا دیے. کہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ اس بے وقوف آدمی کو لگام دی جائے. یہ کرپٹ ترین آدمی ہے، اس کو کراچی والوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے. تو اس قسم کا آدمی ہے، اس پہ میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں. مجھے اتنے رسپانسبلٹی ہیں، نالے کورنگی کا کام شروع ہوا ہے، وہاں جانا ہے، اس کے بعد وہیں جاؤں گا میں. بہت سارے ایشوز ہیں کراچی کے، اور یہ بیوقوف آدمی کا مجھے خام خائی میں میرا دل تو نہیں کر رہا جواب دینے کا، مگر اب اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا پڑے گا. بہت ہو گیا ہے. دیکھیں، جو باتیں یہ کرتا رہا ہے، کر رہا ہے، سارے ملک کو پتا ہے کہ کراچی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. پی ایس پی کے سربراہ پر گرجتے ہوئے میئر کراچی وسیم اختر نے مزید کہا کہ ماضی میں بھی اس پاگل آدمی نے جھوٹ بول کر الیکشن لڑا. سمجھ نہیں آتا اس کے پاس دو لینڈ کروزرز کہاں سے آ گئیں. اس نے وہاں سے یہ فائل غائب کی، اس کے بعد اس نے الیکشن لڑا جھوٹ بول کے الیکشن کمیشن سے. خیر اس وقت کی ایم کیو ایم تھی، اس کو لڑوایا الیکشن. آج آپ ایک گھر چلا رہے ہو بنگلہ پی سی ایچ ایس میں، ایک ڈیفنس میں، 2 کروڑ کی 2 لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہیں. پورا سسٹم کیسے چل رہا ہے؟ میئر کراچی وسیم اختر نے مزید کہا کہ پی ایس پی کے رہنما سے متعلق میرے پاس اور بھی مواد ہے جسے وقت آنے پر منظر عام پر لاؤں گا. میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ اگر یہ بے وقوف آدمی میری جگہ آ جائے تو کچھ وقت میں ہی لڑ جھگڑ کر بھاگ جائے گا. احتساب ہو رہا ہے. ایم کیو ایم کا پہلا ناظم نیب کی گرفت میں ہے. ایک سوال کے جواب میں میئر کراچی نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کے پاس کوئی ریسورسز نہیں. کچرا اٹھانے کا کام سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ہے. ان سے معاہدہ یوں ہی منسوخ نہ کیا جائے. بات 24 ارب کی ہے. سندھ حکومت انہیں قانون کے کٹہرے میں لائے. کیمرامین مدثر نظر کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی. مشیر قانون سندھ مرتضی وہاب کی جانب سے بھی میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے اور انہوں نے بھی میئر کراچی وسیم اختر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ کسی صورت وسیم اختر کام کرنے پر راضی نہیں ہے. وہ فوٹو سیشنز کروانے میں اور مگرمچھ کے آنسو بہانے میں مصروف ہیں. عوام کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے تاکہ ریاست ان کی خدمت کر سکے. میئر کراچی کی پرفارمنس 0 ہے اور ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے یہ واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی کراچی کی خدمت نہیں کی. بارشوں میں ہمارے وزیر اعلیٰ سڑکوں پر تھے اور اس وقت بھی میئر کراچی خوش گپیوں میں مصروف عمل تھے. وسیم اختر کسی صورت کام کرنے پر راضی نہیں ہے. مشیر قانون سندھ مرتضی وہاب کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے. مزید بھی وہ کہتے ہیں کہ وسیم اختر صرف اور صرف فوٹو سیشنز کی محدود رہے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے ہیں. ان کی جانب سے ہمیشہ ہی اختیارات کے نہ ہونے کا رونا رویا گیا ہے. عوام کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے تاکہ ریاست ان کی بہتر انداز میں خدمت کر سکے.
जामिया कराची में तकरीब से खिताब करते हुए माहौलियात के मुशीर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने बातों ही बातों में सिंध काबीना के रद्दोबदल की असल कहानी सुना दी। उनका कहना था कि तमाम इख्तियारात वजीर के नहीं, वजीर आला के होते हैं। वजीर आला सिंध खुद तालीम के महकमे की मॉनिटरिंग करेंगे, वो खुद कुछ चीजें करना चाह रहे हैं। तमाम इख्तियारात होते हैं ना, वो किसी वजीर के नहीं होते हैं, वो वजीर आला के होते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको तो लकी फील करना चाहिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को पर्सनली वजीर आला साहब खुद मॉनिटर करें, जैसा कि वो फाइनेंस के और होम डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करें। तो कैसी कोई अचंभे वाली बात नहीं है, नॉर्मल रूटीन की चीज़ें। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि हम जब तक मुआशरे को तब्दील नहीं कर सकते, जब तक खुद तब्दील न हो। सिंध हुकूमत शजरकारी मुहिम का आगाज कर चुकी है। हरा भरा कराची होगा तो हमारा फायदा होगा। सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि चीफ मिनिस्टर साहब जाके दरख्त तो लगा देते हैं, कोई मिनिस्टर दरख्त लगा देगा, वाइस चांसलर साहब दरख्त लगा देंगे, लेकिन उस दरख्त की निगहदाश्त कैसे होगी, उस दरख्त को पानी कैसे डाला जाएगा, उस दरख्त को लुक आफ्टर कैसे किया जाएगा। और इसलिए ये आइडिया हमने फ्लोट किया कि इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, कि हुकूमत एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे, इनेबलिंग लॉज आपको दे। अगर आपको दरख्त की ज़रूरत है, पौधे की ज़रूरत है, आपको दरख्त पौधा भी प्रोवाइड करे, आपको चले लगा के भी दे दे, लेकिन उसकी निगहदाश्त, उसको लुक आफ्टर करना, उसके अंदर वी नीड योर हेल्प। याद रहे कि पहले ही महकमा खजाना, महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, महकमा दाखिला, महकमा तालीम समेत कई अहम महकमे वजीर आला के पास हैं। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ KM अब्बासी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी और ख्वाजा इजहारुल हसन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और कहते हैं कि मेयर कराची हर सतह पर कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं। इल्जाम तराशी करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तमाम वसाइल रखने वाले वजीर आला सिंध से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता। इल्जाम तराशी की सियासत से कचरा नहीं उठेगा। कराची को तोड़ने के फैसले अदालतों से आ रहे हैं, लेकिन कराची की तरक्की के फैसले नहीं आ रहे। फैसल सब्जवारी और ख्वाजा इजहारुल हसन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनकी जानिब से मेयर कराची वसीम अख्तर के हक में बयान भी सामने आया है। कहते हैं मेयर कराची हर सतह पर कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं। मेयर कराची के इस्तीफे से कराची का कचरा उठने वाला नहीं है। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि इल्जाम तराशी करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तमाम वसाइल रखने वाले वजीर आला सिंध से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता। पाकिस्तान की तवज्जो मीडिया के ज़रिए गुज़िश्ता बारिशों में जो ऑन एवरेज तकरीबन 200 मिलीमीटर तक बाज़ इलाकों में हुई, उसमें कराची शहर की मुख्तलिफ़ सड़कें ज़ेर आब आने और मुख्तलिफ़ इलाकों में पानी आ जाने के ऊपर तवज्जो मीडिया ने मबजूल करवाई, जिस पर हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि बहुत अच्छी बात है कि कराची का मुकदमा वफाक की नज़र में भी और सूबाई हुकूमत की नज़र में जाना भी चाहिए। लेकिन इस मसले का हल क्या है? क्या इस मसले का हल ये है कि मेयर कराची के हवाले से दुश्नाम तराजी करके उनको कोई गाली देकर इस मसले का हल है, या उनको गाली देने वाला बजाय ख़ुद लाफिंग स्टॉक जिसको कहते हैं कि उसके ऊपर ख़ुद दुनिया हंसे कि आपको तो ख़ुद इस मसले का बहुत इदराक है। मसला क्या है? कराची में बारिश का पानी खड़ा क्यों हो रहा है और हुआ क्यों है? उस मसले का मसला ये है कि कराची शहर की जो नई सड़कें भी बनाई गई हैं उनमें बरसाती पानी के नाले बनाए नहीं गए। सिंध हुकूमत ने 3 नई सड़कें बनाई, तीनों की तीनों बैठ गई हैं। जो यूनिवर्सिटी रोड बनाई वो मुख्तलिफ़ मकामात पे उर्दू साइंस कॉलेज और नीपा के सामने बैठ गई। जो शारा फैसल बनाई वो होटल एम्बेसी के सामने, एम्बेसी नाम है ना, या फ़रान के सामने वो वहाँ बैठ गई, और इसी तरीके से उनकी वो मुख्तलिफ़ सड़कें बैठ गई। लेकिन इस हवाले से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि वो मुश्किल काम है ये बतलाना। मसला क्या है? मसला ये है कि कराची के कचरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो तो बरसाती पानी के नालों और सीवरेज की लाइनों में डाल दिया जा रहा है। लेकिन ये कचरा डाल कौन रहा है? क्या 11 बरस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के वज़ीर बल्दियात और इनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आधे से ज़्यादा कराची के चाइनीज़ को सामने रख के और पीछे अपने ठेकेदारों को रख कर, क्या ये यहाँ के कचरे के आधे से ज़्यादा शहर के मालिक मुख्तार नहीं बने? क्या ये मसला आवाज़ उठाने वाले, पत्थर उछालने वालों को नहीं पता कि कराची शहर क्या सिंध के किसी भी ज़िले में
कचरा उठाने का इख्तियार इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर 10 अरब रुपए उसका बजट रख के मन पर हमारे मुखालिफिन कह रहे हैं कि मेयर इस शहर की लड़ाई तनहा लड़ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो इनके की तरफ से राब्ता कमेटी की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान न सिर्फ मेयर कराची के साथ है, उनके मौक़िफ़ के साथ है, बल्कि उनकी काविशों को भी सराहती है। इसी तरीके से तमाम चेयरमैन जो काम कर रहे हैं वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम चेयरमैन और मेयर पार्टी उनके साथ खड़े हैं। ये कोई गुमान में ना रहे कि मेयर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेयर कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं और जब कराची के मुकदमे की बात आती है एमक्यू का मेयर है तो जाहिर है वह एमक्यू का मुकदमा लड़ रहे हैं। दूसरी एक तरीन बात ये तो ये आपको बता दिया, हाँ ये ज़रूर है बेहतरी की गुंजाइश है और बेहतर काम किया जा सकता है। हमारे टीएमसी के चेयरमैन और परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं, मेयर और बेहतरी कर सकते हैं। आए मुलाकात करें, मेयर से मिलें, चेयरमैन से मिलें कि हाथ मजबूत करें। ये वो क्या रहे टेलीविजन पर। दूसरा पॉइंट जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा ये है कि ये साजिश को समझें। जिसका कसूर है वो तो मजे ले, जिसका कसूर है, जिसके पास वसाइल हैं वो तो मजे में है भाई। जिसको 340 अरब रुपए शहर से मिल रहे हैं, जिसको 840 अरब रुपए विभाग से मिल रहे हैं, वो तो चैन की बंसरी बजा रहे हैं। लड़ जो कचरे में फंसे हैं, जो सेवरेज के मसाइल में फंसे हैं, वो एक दूसरे में इल्ज़ाम उठाए हैं और सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम किस पे लग रहा है? उस पर, उस मेयर पर जो सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहा है सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। मेयर कराची पर इल्ज़ाम तराशी करना दर हकीकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंडा फॉलो करता है। जो मेयर कराची में इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, जो एमक्यू पे इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, वो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रहा है। पसे पुष्ट पीपल्स पार्टी की इस करप्ट बदइंतज़ाम हुकूमत के साथ वो मिला हुआ है। तो ये साजिश आज वज़ीर आला सिंध से क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे? वज़ीर आला सिंध को क्यों नहीं कुछ कह रहा? जिनके पास वसाइल हैं उनको कोई कुछ नहीं कर रहा, जिनके पास वसाइल हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो रही। और जहाँ तक केएमसी की बात है, और सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं वफाक और मेयर मिले हुए हैं। अफसोस की बात है मेयर लोगों को सिविल नाफरमानी पर उकसा रहे हैं। अली जैदी की क्लीन कराची मुहिम सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर जारी है। हमने वफाक से 100% बेहतर कराची के लिए काम किया है। K4 मंसूबा हमने ही तैयार किया है। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी की जानिब से कहा गया है कि वफाक और मेयर मिले हुए हैं। वफाक और मेयर में गठजोड़ है। अफसोस की बात है कि मेयर लोगों को सिविल नाफरमानी पर उकसा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मेयर कराची की जानिब से कहा गया था कि कराची के शहरी सिंध हुकूमत को टैक्सेस ना दें बल्कि टैक्सेस KMC को दिए जाएं, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया था और मौजूदा मेयर को नाकाम तरीन मेयर भी करार दिया गया था। सईद गनी का वर्जन भी अब सामने आ गया है। कहते हैं कि अफसोस की बात है मेयर लोगों को सिविल नाफरमानी पर उकसा रहे हैं। अली जैदी की क्लीन कराची मुहिम सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर जारी है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी एक्शन में आ गए। कहा सफाई मुहिम ट्विटर पर जारी है। लगता है वफाक और मेयर मिले हुए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कराची का कचरा उठाना DMC का काम है। बड़े नाले KMC और छोटे DMC के जिम्मेदारी है। मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि कानून के मुताबिक जो कचरा है गलियों से, मोहल्लों से, सड़कों से उठाना वो DMCs का जो हक है, इख्तियार है, उनकी ड्यूटी है, उनकी जॉब है। नालों की सफाई और नालों के जो गंद है वो उठाना और उनको साफ़ करना बड़े नालों का वो KMC और छोटों का DMC ने करना है। इस तरह कचरे के साथ सूबाई हुकूमत का बराह रास्त किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है।
لیکن جب ڈی ایم سیز اپنا کام صحیح نہیں کر رہی تھیں اور کچرا ان سے نہیں اٹھ رہا تھا تو کچھ برس قبل ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا تاکہ ہم ان کی مدد کریں. اور پھر جب بورڈ بن گیا تو بورڈ نے خود سے یہ ساری چیزیں ٹیک اوور نہیں کر لیں. اس ڈی ایم سی کی منتخب کونسل نے جب تک قرارداد پاس نہیں کی, جب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو یہ اختیار نہیں دیا, ہم نے یہ کام شروع نہیں کیا. سعید غنی نے کہا کہ ہم نے وفاق سے 100% بہتر کام کراچی میں کیا ہے. K4 منصوبہ ہم نے تیار کروایا. مجھے لگتا تھا کہ میئر کراچی علی زیدی سے پوچھیں گے کہ نالے صاف کر کے کچرا باہر کیوں پھینکا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ کراچی میں مسائل بڑھ گئے ہیں. اگر آپ نے شہر گندا ہی کرنا ہے تو یہ کام ختم کر دیں. ہماری توجہ کراچی پر ہے, لیکن بدقسمتی سے علی زیدی صاحب ہوں یا میئر کراچی صاحب ہوں, وہ اس پر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. میئر صاحب سے میں یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ یہ بات ضرور کریں گے کہ علی زیدی صاحب جو کچرا نالوں سے نکال رہے ہیں وہ لینڈ فل سائٹ پہ کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں. وہ سارا کچرا شہر میں پھیلایا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے کرائسس پیدا ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جی ٹی ایس تھے وہ ہم نے کلیئر کر دیے تھے, لیکن علی زیدی صاحب کی کلین کراچی, جس کو اب میں کہتا ہوں کہ کراچی کو گندا کرنے کی مہم ہے, اس کی وجہ سے وہ ایریاز مزید خراب ہو رہے ہیں. ایک سوال کے جواب میں سعید غنی نے کہا کہ میں نے ابھی بات کی ہے کہ اسمبلی قوانین بنا لیتی ہیں مگر اس پر عمل نہیں کیا جاتا, مگر درمیان میں آمر آ جاتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. کراچی کے مسائل کو ہمیں مل کر حل کرنا چاہیے. اور سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی جانب سے جناح اسپتال اور NICVD کا دورہ کیا گیا ہے. صفائی ستھرائی اور اسپتالوں کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا. کہتے ہیں سندھ حکومت اسپتالوں کی صورتحال پر خصوصی طور پر توجہ بھی دے رہی ہے. سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ ان ایکشن نظر آئے اور ان کی جانب سے جناح اسپتال اور خاص کر NICVD کا دورہ بھی کیا گیا ہے. صفائی ستھرائی اور خاص کر اسپتالوں کی صورتحال کا بھی انہوں نے جائزہ لیا ہے اور یہ ہدایت بھی کی ہے کہ یہاں پر صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بہتر انداز میں رکھا جائے. خاص کر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسپتال میں ادویات کی قلت بھی نہیں ہونی چاہیے اور تمام مریضوں کو احسن طریقے سے طبی امداد فراہم کرنی چاہیے. سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ ان ایکشن نظر آئے اور ان کی جانب سے جناح اسپتال اور NICVD کا دورہ بھی کیا گیا. خاص کر صفائی ستھرائی اور اسپتالوں کی صورتحال کا بھی انہوں نے جائزہ لیا اور یہ احکامات بھی جاری کیے کہ سندھ حکومت اسپتالوں کی صورتحال پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. دیکھیں اب آپ کے سامنے ہیں, مختلف میڈیا پہ یہ رپورٹ ہوتا رہا ہے اور جتنے بڑے پرنٹ نیوز پیپر ہیں وہاں پہ آج کی سرخیاں لگی ہوئی ہیں, ہیڈ لائنز ہیں, اور جو لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں وہ سب پریشانی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, خاص طور پر مریضوں کو. یہ 3-4 ہاسپٹلز یہاں پہ ہیں اور سارا پھر بلیم آتا ہے لوکل گورنمنٹ پر, KWSP پر, کینٹونمنٹ پر, KMC یا دیگر اداروں پر. حالانکہ آپ دیکھیں یہ ایک نیگلیجنسی ہے, بلکہ کرمنل نیگلیجنسی, اور ان کی وہ ہے یہ جو یہاں کے کوئی کانٹریکٹر ہیں اور وہ یہ سارا پانی, یہ کوئی 8 کے قریب پائپ یہاں پہ ہیں جس سے یہ پانی جا رہا ہے, جو اس پورے روڈ کو خراب کر رہا ہے. یہ پورا انفراسٹرکچر اس سے تباہ ہوا ہے. تو ان کے اوپر انشاءاللہ کارروائی بھی ہوگی, اور اگر کوئی ہمارے ڈپارٹمنٹل کہیں پہ کوئی فلاز ہیں تو اس کو بھی بہتر کریں. اور میٹرو ون نیوز کی خبر پر سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی جانب سے نوٹس لے لیا گیا ہے. اسپتالوں کے باہر جمع سیوریج کے پانی پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا, جبکہ MD واٹر بورڈ اسد اللہ نے جمع پانی کا نکاس بھی کرا دیا ہے. میٹرو ون نیوز کی کاوش ایک بار پھر رنگ لے آئی ہے. مسلسل میٹرو ون نیوز کی جانب سے یہ خبریں نشر کی جا رہی تھی کہ حالیہ بارشوں کے بعد صورتحال انتہائی ابتر ہے اور کراچی کا کوئی گلی, کوئی محلہ, کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں پر سیوریج کا گندا پانی موجود نہ ہو. میٹرو ون نیوز کی کاوش ایک بار پھر سے رنگ لے آئی ہے اور میٹرو ون نیوز کی جانب سے سندھ حکومت کو جگا دیا گیا ہے. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی جانب سے میٹرو ون نیوز کی خبر پر ایکشن لے لیا گیا ہے. اسپتالوں کے باہر جمع سیوریج کے پانی پر انہوں نے برہمی کا بھی اظہار کیا, جبکہ MD واٹر بورڈ اسد اللہ نے جمع پانی کا نکاس بھی کرا دیا ہے.
वर्क्स एंड सर्विसेज था, इरिगेशन था, दीगर इदारे थे। देखें, सीएम साहब हमारे बड़े हैं और वो बहुत एक्टिव हैं, उन्हीं की हम सारे टीम हैं। और इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान के अब सब चीफ मिनिस्टर्स को देख लें, सीएम सिंध जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। इसी वजह से हमेशा ये अफवाहें फैला दी जाती हैं कि वो सीएम सिंध चेंज हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब 2023 तक हैं और 23 के बाद भी वो हमारे कैंडिडेट हैं। और मलीर मॉडल कॉलोनी में मसाइल के हल के लिए चेयरमैन बल्दिया कुरंगी नैयर रजा मुतहर्रिक हो गए हैं। कहते हैं सिंध हुकूमत और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हमारी कोशिश है कि जहां जहां मसाइल हैं वहां पहुंचकर मसाइल को दूर कर दिया जाए। चेयरमैन बल्दिया कुरंगी नैयर रजा ने बहरिया टाउन के कमांडेंट रिटायर्ड जुल्फ़िकार के हमरा मलीर मॉडल कॉलोनी के अतराफ का दौरा किया और जारी सफाई सुथराई और दीगर कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जहां जहां पानी खड़ा है वहां से निकासी का काम फौरन शुरू किया जाए, जबकि सीवरेज के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम भी किए जाएं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था कि सीवरेज का बोसीदा निज़ाम की वजह से मसाइल में इजाफा हो रहा है। हमने कई दफ़ा एमडी वाटर बोर्ड को इस जानिब मुतवज्जा करवाने की कोशिश की है मगर कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। उनका कहना था कि कोशिश कर रहे हैं कि मलीर के अतराफ में जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल करें। हम आवाम से भी अपील करते हैं कि सफाई और दीगर कामों में हमारे साथ ताउन करें, क्योंकि आपके ताउन के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर कहते हैं कि मुहर्रम उल हराम के मौके पर इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूस के रूट्स के अतराफ से तजावुजात का खात्मा, गाड़ियों की पार्किंग और दीगर इक़दामात किए जाएंगे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अज़ादारान को बल्दियाती सहूलियात समेत दीगर इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जाफरिया अलायंस के सदर के अलावा भी दीगर की जानिब से शिरकत की गई। मुंतज़मीन और दीगर ने भी अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। इजलास में इमाम बारगाह के मुंतज़मीन ने बल्दिया शर्की के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती सहूलियात के हवाले से आगाह किया, जबकि उनके हल के हवाले से अपनी तजावीज़ भी पेश की। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर ने मसाइल की यकीन दहानी कराते हुए मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी की है कि इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूस मजालिस के रूट्स के अतराफ से तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ गाड़ियों की पार्किंग और दीगर इक़दामात भी किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम के मौके पर अज़ादारान के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी लाहे अमल इस हवाले से मुरतब किया जाए और इक़दामात का आगाज़ किया जाए। चेयरमैन ज़िला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद हमेशा से आम आदमी के लिए हालात बेहतर बनाने में मददगार रही है। ज़िला काउंसिल के मरकजी ऑफिस में सूबाई वज़ीर मुर्तज़ा बलोच और मुतालिका MNA अब्दुल कलीम बलोच से मुलाकात के दौरान मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि चेयरमैन ज़िला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद हमेशा से आम आदमी के हालात बेहतर बनाने में मददगार रही है। इब्तिदा से अनथक मेहनत की जा रही है और तमाम क़यादत ने इसी सम्त में सफ़र को जारी रखा हुआ है। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जितने भी वसाइल हैं उन्हें बरूए कार लाएंगे ताकि अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना भी ना करना पड़े। बल्दिया कुरंगी की UC 27 के चेयरमैन शौकत अली ने सफाई सुथराई ना होने पर वाटर MD बोर्ड KMC और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की लापरवाही का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। कहते हैं अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए कोई महकमा ताउन ही नहीं कर रहा।
बल्दिया कोरंगी की यूसी 27 के चेयरमैन सैयद शौकत अली ने यूसी काउंसिलर सैयद सरवर अली रिजवी और दीगर अरकान के हमरा यूसी फंड से निजी सतह पर मशीनरी मंगवा कर कचरे की सफाई करवाई। चेयरमैन का कहना था कि वाटर बोर्ड, KMC, DMC और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमसे किसी भी किस्म का ताउन नहीं कर रहे हैं। हर 6 से 7 दिन बाद DMC की जानिब से सफाई के लिए एक ट्रैक्टर और 2 ट्रॉलियां भेज दी जाती हैं, जो सिर्फ 1 घंटा काम के बाद मशीनरी में किसी न किसी खराबी का बहाना बनाकर वापस DMC बुलवा ली जाती हैं, जिसकी वजह से UC 27 कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। शिकायत सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को दिखाएं कि आवाम किस कदर यहाँ परेशान है। कचरे के हवाले से और सेवरेज के हवाले से यहाँ मुसलसल परेशानियाँ, कोई हल करने वाला नहीं है। सिंध गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है किसी भी किस्म की। अभी DMC की तरफ से भी हमें कोई गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, ना कोई सपोर्ट है। पिछले 8 तारीख को यहाँ पर गाड़ियाँ भेजी गई थी। कल भी गाड़ियाँ हमें देने का कहा गया था, लेकिन हमें बामुश्किल 2 से 3 घंटे के लिए गाड़ियाँ दी गई। अब ये पूरी UC 27 है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की, सही है। और देख लें, आपके सामने आप इसको देख रहे हैं, कचरे के ढेर बने हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये किसी भी तरीके से गार्बेज का सिलसिला ख़त्म हो। लिहाजा DMC ताउन कर रही है, ना ही KMC ताउन कर रही है, और ना ही सिंध गवर्नमेंट ताउन कर रही है इस हवाले से। ये हमने प्राइवेट तौर पर ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ हायर कर रहे हैं, जिससे हम अपने UC फंड से काम करवा रहे हैं। 2 दिन हो गए हमें काम करवाते हुए, लेकिन गार्बेज इतना है कि हम इसको समेट नहीं पा रहे हैं, सही है। तो मेरी हुकाम वाला से गुजारिश है, दरख्वास्त करता हूँ DMC से भी और मुताल्लिक़ सिंध गवर्नमेंट से भी कि बराए करम हमें गाड़ियाँ दी जाएँ, ताकि हम ये गार्बेज का मसला हल कराएँ। कुंडी मैन हमारे पास नहीं आ रहे हैं, 2 या 3 आते हैं। यहाँ के एक्सीएन है बाजवा साहब, बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बस उनको तो 4-8 मेरे पास लोग हैं कुंडी मैन, 4 बंदे भेजते हैं, उन्हें 2 आते हैं, नहीं आते हैं, बाकी बैठ के पैसे खा रहे हैं उनके ही। तो बराए करम इनको भी देखा जाए। हमारी मीडिया से गुजारिश है कि इनके लिए कुछ करें आप। चेयरमैन ने मजीद कहा कि हमने अवाम से वादा किया है कि बल्दियाती सहूलियात फराहम करेंगे। अब अगर कोई महकमा ताउन नहीं करेगा, तब भी हम अवाम की खिदमत तर्क नहीं करेंगे। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं, कराची के इलाके लाइंस एरिया की मेन शाहराह पर पानी की मेन लाइन फट गई है और लाइन टूटने के बायस हजारों गैलन पानी जाया होने लगा है, जबकि चारों अतराफ पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। न बिजली न पानी, यही है कराची वालों की कहानी। यहाँ आए रोज साफ पानी की लाइंस फटने से हजारों गैलन पानी शाहराहों की जीनत बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ जिला शर्की के इलाके ट्यूनिशिया लाइन की मेन शाहराह पर, जहाँ वाटर बोर्ड इंतजामिया की नाअहली के बाइस हजारों गैलन पानी जाया होकर सड़क की जीनत बन गया। मेट्रो न्यूज से बात करते हुए शहरियों का कहना था कि अरसे दराज से मेन शाहराह पर पीने के पानी की लाइन फटी हुई है, जिसे कोई देखने वाला नहीं। ये अभी सीनिया का इलाका है, गुज़िश्ता काफ़ी सालों से ये है, लेकिन ये सेवरेज का नहीं है, ये कोई लाइन फटी हुई है यहाँ से, जो ना नाले से, जो जिसका पानी जब ये लोग लाइन खोलते हैं तो उसकी वजह से जो ना यहाँ से ये पानी ओवरफ्लो होकर फिर ये रोड की ऐसी की तैसी कर रहा है। अब ये है कि अरबाब इख्तियार ज़रा इस पर तवज्जो दे लें कि यहाँ से ये लाइन का जो है, ये मीठे पानी की लाइन है जो ये फटी हुई है। नहीं तो पानी तो अंदर आ ही नहीं रहा, लोगों ने हर दूसरा घर बोरिंग करा रहा है, हर दूसरा घर बोरिंग, और पानी देखें कैसे नाले में ज़ाया हो रहा है। कई दफ़ा से ठीक करने आते हैं, आ जाते हैं और करके जाते हैं, पता नहीं क्या करके जाते हैं। लोगों को पानी नहीं मिल रहा और यहाँ पे पानी ज़ाया हो रहा है। और आप किस तरीके से हम रोज़ लेट होते हैं, आप सोच नहीं सकते। ये आरबी पब्लिक स्कूल है, और ये नहीं सन पैट, सन जोसेफ, सन माइकल, कितने स्कूल हैं, मगर कोई देखता ही नहीं यार इस साइड पर। और ये देखें आप, ये क्या हालात हैं, कुछ देखने वाला कोई है ये यहाँ बनने वाला। इतना पैसा, इतने टैक्सेस जनरेट कहाँ जा रहे हैं यार। इमरान खान ने इतने नारे और इतनी बातें करी थी, क्या हुआ भाई? अब क्या करना है और कब होगा ये काम? 1 दिन, 1 महीना, 1 साल गुजर गया, अब तक नहीं हुआ तो फिर कब होगा? शहरियों का मजीद कहना था कि वाटर बोर्ड इंतजामिया समेत इलाकाई इंतजामिया को भी कई बार आगाह किया गया, मगर किसी के कानों पर जूं तक न रेंगी। हजारों गैलन पानी बहने के बाद शाहराह पर साफ पानी के जौहड़ बन गए हैं, जबकि चारों तरफ पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। जबकि कराची के इलाके मलीर 15 नंबर पर सीवरेज के पानी ने जिंदगी अजीरन कर दी है। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने के बायस बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन गया। 1 नंबर पर सीवरेज का पानी जमा होने से हजारों गैलन पानी शाहराहों की जीनत बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ जिला शर्की के इलाके ट्यूनिशिया लाइन की मेन शाहराह पर, जहां वाटर बोर्ड इंतजामिया की नाअहली के बाइस हजारों गैलन पानी जाया होकर सड़क की जीनत बन गया। मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए शहरियों का कहना था कि अरसे दराज से मेन शाहराह पर पीने के पानी की लाइन फटी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन गया।
कराची के इलाके मलिर 15 नंबर पर सीवरेज के पानी ने जिंदगी अजीरन कर दी। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने के बायस बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। हजारों मुसाफिरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि सड़कों पर पानी के बायस अंधे गड्ढों की वजह से हादसात का खतरा भी बढ़ गया है। मोटरसाइकिल सवार अक्सर गड्ढों के बायस सीवरेज के गंदे पानी में गिर जाते हैं। गटर का गंदा पानी गलियों और घरों में भी दाखिल हो गया है, जहां ताफून की वजह से रिहायशियों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं। बच्चे घरों में महसूर होने के बावजूद वबाई अमराज का शिकार हैं। इलाका मकीन इंतजामिया से नाला हैं। मुझे हैरत इस बात की होती है कि यहाँ अभी जो मैंने बजट देखा था कि 4.25 अरब रुपए बजट मंजूर किया गया है। उसके बाद इस बात की होती है कि पहले हम ये सुनते थे कि जब जलजला आता है तो जलजले के बाद आफ्टर शॉक्स महसूस होते थे, तो यहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि वो हमारे इन पीपल्स पार्टी के जो बहुत ही मोहतरम हमारे बिलावल साहब, जिन्होंने ये कहा कि जब बारिश आती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि थोड़ी बारिश आई चली गई, ज़्यादा बारिश आई वो भी चली गई। अब तो बारिशों को ख़त्म हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, ये अब आफ्टर शॉक्स महसूस हो रहे हैं। यहाँ का हाल बहुत बुरा है, गटर भरी हुई है, रोड भरे हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि सिटी गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट की लड़ाई में कराची का बुरा हाल हो गया। शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिंध की जमातों के लिए कराची सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी हुई है। कराची का इलाका सोल्जर बाजार मसाइलिस्तान बन गया है। जगह जगह सीवरेज का पानी और सड़कों की टूट फूट के बायस इलाका मोहनजोदड़ो का मंजर पेश करने लगा। कराची का इलाका सोल्जर बाजार मसाइलिस्तान बन गया। जगह जगह सीवरेज का पानी और सड़कों की टूट फूट के बायस इलाका मोहनजोदड़ो में तब्दील हो चुका है। परेशान इलाका मकीन इंतजामी गफलत पर नोहक कना है। इलाके की तमाम सड़कें टूटने के बायस उनमें पड़े बड़े बड़े गड्ढों में सीवरेज का पानी भरने से गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गई हैं, जो किसी भी हादसे का पेश खीमा साबित हो सकती हैं। सड़कों की खराब सूरत हाल के बायस ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया है। ट्रैफिक जाम होने के बायस स्ट्रीट क्राइम्स भी मामूल बन गए हैं। सर यहाँ जब भी बारिश हो, थोड़ी सी भी बारिश हो तो यही हाल होता है, थोड़ी सी भी हो, और ये तकरीबन बारिश हुए भी आज तकरीबन हफ्ता भर हो गया है। और ये बारिश के अलावा गटर का पानी है, टोटल बारिश का पानी भी बराबर में आदम जी वालों का बंगला है उधर भरा पड़ा है। उसकी वजह से लोगों के घरों की बुनियाद को नुकसान पहुंच रहा है। तो उसकी वीडियो भी हमने बनाई थी, फेसबुक वगैरह पे भी डाली, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो लिहाजा आपसे हमारी अपील है, आप हमारी आवाज़ को बुलंद करें और इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालें। कोई सुनवाई नहीं है, ईद की सारी आलाइश है, कचरे का ढेर जमा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये तकरीबन 8 दिन हो गए, 8 दिन से ये पानी पड़ा हुआ है हमारे यहाँ। लोगों को नमाज के लिए गुजरने में तकलीफ़ है, आती जाती लेडीज़ को बहुत परेशानी है, मोहल्ले के बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं। इससे मज़ीद ताफून फैल रहा है, लोगों को बहुत परेशानियाँ हैं। खुदारा कोई हमारी फरियाद सुने और इस मसले को हल करवाए। शहरियों का कहना है कि दावे तो बड़े किए जाते हैं, मगर इंतजामिया कोई इकदाम नहीं करती। आला हुक्काम की बात करें तो वो लोग इख्तियारात और वसाइल की कमी का कहकर जान छुड़ा लेते हैं। सिंध हुकूमत भी सिर्फ दावों की हद तक कराची की खैर ख्वाह है। और अब चलते हैं सेगमेंट कराची हमारी नजर से की जानिब। और अब कराची हमारी नज़र से में आपको दिखाते हैं कराची के इलाके नॉर्थ नासमाबाद ब्लॉक डी के मनाजिर जो हमें भेजे हैं वहां के रिहायशी फरहान ने। और यहां पर हम देख सकते हैं कि कचरा उठाने के बजाय उसे जलाया जा रहा है, जिससे धुआं भी उठ रहा है और माहौलियाती आलूदगी भी
پھیل رہی ہے اور جو ارد گرد میں لوگ موجود ہیں، علاقہ مکین ہیں، انہیں بھی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک جانب تو کراچی مہم جاری ہے، لیٹس کلین کراچی کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن کچرا اٹھانا تو دور کی بات ہے، یہاں تو کچرے کو جلایا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے بلند بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت اس وقت آپ میٹرو ون نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نارتھ ناظم آباد کے یہ مناظر ہیں اور رہائشی فرحان کی جانب سے یہ ویژولز ہم تک پہنچے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر کچرا اٹھایا نہیں جا رہا، اس کو ڈمپ نہیں کیا جا رہا، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچرے کو جلایا جا رہا ہے جس سے دھواں اٹھ رہا ہے اور لوگوں کو سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ علاقہ مکین مسلسل اس حوالے سے دہائیاں دے رہے ہیں کہ یہاں کی حالت زار پر کچھ رحم کیا جائے، لیکن صورتحال اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ عوام کی مشکلات کو کم کرنے والا کوئی نہیں ہے اور فوٹو سیشنز کی حد تک صفائی مہم کا سلسلہ بھی جاری، جیسے وفاق بھی تعاون کر رہا ہے، خود شہری اور صوبائی حکومت بھی اس حوالے سے بلند بانگ دعوے کرتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، جو کہ آپ میٹرو ون نیوز کی سکرین پر اس وقت ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور نارتھ ناظم آباد کے بعد ابھی کچھ بات کرتے ہیں کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی نمبر 1 کی، جہاں کے مسائل بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جہاں سیوریج کا پانی جگہ جگہ جمع ہے۔ علاقہ مکین شدید تعفن سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ویژولز بھی ہمیں وہاں موجود ایک رہائشی کی جانب سے بھیجے گئے ہیں اور حقیقت اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ بارش گئے کافی ٹائم ہو چکا ہے، لیکن سیوریج کا گندا پانی ابھی بھی سڑکوں پر موجود ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ جمع ہو جاتا ہے، لیکن بارش اب جا چکی ہے اور زیادہ بارش بھی چلی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سیوریج کا یہ گندا پانی وہاں پر موجود ہے اور لوگوں کو منہ چڑھا رہا ہے۔ خاص کر جو یہاں پر نمازی ہیں انہیں خاصی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ مسجد جاتے ہوئے بھی ایک طویل مسافت طے کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو مکین ہیں انہیں بھی چلنے پھرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بارش کا پانی جگہ جگہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے اور سیوریج کا گندا پانی اس کے ساتھ مل چکا ہے، اور یہ پانی صرف سڑکوں تک محدود نہیں ہے بلکہ لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہونا شروع ہو گیا ہے اور لوگ خاصے پریشان ہیں، لیکن انتظامیہ سرے سے ہی غائب نظر آتی ہے۔ صفائی مہم کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپڈیٹڈ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔